قلوبنا غل للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ جہاں یہ دعا مانگے وہاں ایصال ثواب بھی اس قرآن مجید کی نص سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا کریں، اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما، اور ہمارے ان بھائیوں کی جو حالت ایمان میں رخصت ہوئے ان کی مغفرت فرما، اور ہمارے دلوں میں کسی طرح کا غل، کسی طرح کی ٹیڑھ باقی نہ رکھ، اور ہمارے دلوں سے عداوت دور فرما دے۔ تو الغرض یہ کہ اہل ایمان جو ہے وہ ہمیشہ اپنے لیے بھی بخشش مانگتے ہیں اور اپنے سے پہلے لوگوں کے لیے بھی بخشش مانگتے ہیں۔ اور یہاں ایک بڑی دلچسپ بات میں عرض کرتا چلوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ زندوں کے لیے تو بخشش نہیں ہے، اور جب تک میت کی تدفین نہ ہو اس وقت تک دعا نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ساری آیتیں جو میں نے پڑھی یہ بخشش کی آیتیں ہیں۔ جہاں ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں وہاں ہم گزرے ہوئے لوگوں کے لیے مانگ رہے ہیں۔ تدفین کا ہونا یہ الگ مرحلہ ہے، نماز جنازہ کے بعد ہی تدفین ہوتی ہے، لیکن دعا ہر وقت اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہو رہی ہے، تو لہٰذا دعا اور استغفار یہ دو تحفے ہیں جو مرحومین کے لیے اسپیشلی اور زندوں کے لیے بھی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ دعا کیا کیجئے، استغفار کیا کیجئے، ہمیشہ جو ہے اپنے لیے، اپنے اہل عیال کے لیے اور اپنے دوست احباب کے لیے اور جمیع مومنین کے لیے بخشش کی دعا مانگا کیجئے۔ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت کرتا رہوں گا، اور وہ دعا کرتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت کا حکم آیا، کیونکہ آزر کا انتقال حالت کفر میں ہوا تھا، تو اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں غالباً منع فرما دیا کہ کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ جو لوگ شرک پر یا کفر پر مرے ہوں ان کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت کریں۔ لیکن اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے، اور ربنا اغفر لی ولوالدیّ یہ جو دعا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین کے لیے ہے۔ آزر آپ کا چچا تھا، اس کے لیے آپ نے زندگی بھر ہدایت کی دعا بھی کی اور مغفرت کی دعا بھی کی۔ تو لہٰذا یہ طریقہ کار قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں آگاہ کیا کہ ہم ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں، بخشش طلب کریں، استغفار کریں۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورہ نازل ہوئی، سورہ نصر، جو نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کا آخری سورہ ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کثرت سے یہ کلمہ سنتی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو ہے وہ یہ دعا کرتے، سبحان اللہ و بحمدہ ہی استغفر اللہ العظیم کے کلمات میں سنتی، اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے یہ کلمات میں نے نہیں سنے، یہ کلمات آپ کثرت سے جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید کی جو سورہ اتری ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ اپنی رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے استغفار کرتے رہیے، یعنی اپنی امت کے لیے معافی طلب کرتے رہیے۔ اور خود سورہ اگر ہم فتح کو دیکھیں تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر الی آخر الآیہ، کہ حبیب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کر دی ہے، اور یہاں خوشخبری ہے فتح مکہ کی، اور فرمایا کہ ہم آپ کے واسطے سے آپ کے اگلوں اور آپ کے پچھلوں کے لیے جتنے بھی ان کی خطائیں ہیں وہ معاف کر دیں گے، یعنی آپ کی شفاعت ان کے حق میں قبول کی جائے گی۔ تو اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی تعلیم دی اور اپنی امت کو بتایا کہ دن میں 100 مرتبہ خود تعلیم امت کے لیے اور اللہ کی بارگاہ کی قربت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کا کلمہ کہتے تھے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں معافی اور استغفار کے لیے ایک قرینہ بھی سکھایا ہے، ایک راہ بھی بتائی ہے، ایک طریق بھی بتایا ہے۔ جس طرح سے قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں ذکر کے لیے جو ہے وہ مختلف پوزیشنز کا بیان کیا ہے، ان الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کبھی قیام کی حالت میں یعنی اسٹینڈنگ پوزیشن میں، کبھی جو ہے قعود کی حالت میں، کبھی بیٹھک کی پوزیشن میں، اور کبھی قعود جنوب کی حالت میں یعنی لیئنگ پوزیشن میں لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور انسان زندگی میں ان 3 پوزیشن میں سے ایک ہی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے سٹنگ پوزیشن میں ہوں
اور کچھ لوگ جو اسٹینڈنگ پوزیشن میں ہیں، کچھ لوگ لیئنگ پوزیشن میں ہیں، الغرض ہر پوزیشن میں اللہ رب العزت کا ذکر، اللہ رب العزت کی یاد، یہ طریق بتا دیے۔ اسی طرح سے استغفار کے لیے ہمیں قرینہ سکھایا کہ استغفار کے کلمات تو یہ آ گئے ہیں، لیکن مانگو گے کیسے، کیسے جاؤ گے، کیسے تم استغفار جو تمہاری ڈیفینیٹ قبول ہو جائے گی۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ہمیں یہ قرینہ سمجھایا کہ اگر اللہ سے معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، اور اسپیشلی اس وقت جب ندامت سے تم بھرے ہوئے ہو اور جب تمہیں احساس ندامت ہو گیا، احساس گناہ ہو چکا ہے، اور تم چاہتے ہو اللہ سے معافی مانگو، اور تمہیں یہ یعنی یقین بھی ملے کہ ہاں میری یہ استغفار جو ہے قبول ہو گئی، یہ میری معافی قبول ہو گئی، تو پھر اس کا طریق بتا دیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر کسی زمانے میں لوگ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں تو معافی کے لیے آپ کے پاس چلے آئیں، آپ کے دربار میں آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایک خصوصی ہے جو مدینہ المنورہ میں یا حالت حیات میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے دنیا کے اندر، تو اس وقت صحابہ آپ کی خدمت میں دوڑے چلے جاتے تھے، اور جب وصال ہو گیا تو آپ کے مزار پر انوار پر آ جاتے تھے۔ اب جو لوگ نہیں پہنچ پاتے ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی ہر کائنات کے ذرے کو گھیرے ہوئے ہے، تو وہ جس وقت بھی اپنے گھر میں مصلی بچھا کر درود و سلام پڑھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا حاضری کا تصور کر کے بیٹھیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معنن روحاً قلباً انہیں جو ہے وہ حاضری نصیب ہوگی، کیونکہ عالم امر جو ہے وہ قرب اور بعد کا پابند نہیں ہوتا۔ تو جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور استغفار کریں گے اور استغفر اللہ کہیں گے اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور لے کر کریں گے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کریں گے کہ اللہ کے رسول آپ بھی ہمارے لیے سفارش فرمائیے تاکہ آپ کا رب آپ کی سفارش کے تو فعل ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو قرآن مجید نے کہا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کہ وہ اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان پالیں گے۔ یہ طریقہ بتایا ہے، اور بتایا ہے کہ توبہ کے ساتھ، قبولیت توبہ کے ساتھ اگر رحمت بھی پانی ہو تو رحمت للعالمین کے دربار سے ہو کر جاؤ، حضور کی بارگاہ کے تصور میں رہو تو تمہیں رحمت الہی، بخشش الہی تمہارے جو ہے وہ تمہارے شامل حال ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد پروگرام کا جو فارمیٹ ہے، اور پھر ساتھ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہمیشہ ہم کوٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ لیلۃ القدر کا وظیفہ کیا ہے۔ جب انہوں نے پوچھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیلۃ القدر کا وظیفہ بھی مغفرت اور بخشش اور معافی کی صورت میں ارشاد فرمایا، اور فرمایا اگر تمہیں لیلۃ القدر مل جائے تو اللہ رب العزت سے معافی طلب کیا کرو، اور اہل ایمان کے لیے ہر رات لیلۃ القدر ہے۔ اگر قدردان ہوں، اگر انہیں یہ معلوم ہو کہ یہ رات اللہ رب العزت آخری پہر اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور صدائیں بلند ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ کشاں کشاں اللہ کے دربار کی طرف دوڑتے چلے آئیں، اور جسے اللہ رب العزت کی قربت، اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ رب العزت کی بخشش حاصل ہو گئی، اس سے بڑھ کر لیلۃ القدر اور کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ دعا بھی سکھائی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے ہمارے رب تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معافی سے پیار کرتا ہے، ہم تیری بارگاہ میں معافی کے لیے حاضر ہیں، بس تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کے کلمات سکھائے، اور اس کے بعد آج اس کلمہ طیبہ جو کہ ہمارا آخری کلمہ اس نیت سے ہم پڑھتے ہیں، اور اس کی کثرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ کلمہ طیبہ وہ ہے جب میزان میں اس کلمے کو رکھا جائے گا، اس ذکر کو رکھا جائے گا، تو یہ ذکر میزان میں جب رکھا جائے گا تو اس کا وزن جو ہے وہ اتنا وسیع ہوگا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بھی اگر اس کے مقابل لا کے رکھ دی جائیں تو کلمہ طیبہ کا وزن کہیں بڑھ جائے گا، کلمہ طیبہ جو ہے اس سے آگے چلا جائے گا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوف اور عبداللہ بن عمر اور عمر بن العاص اکٹھے ہوئے، اور حضرت نوف نے کہا اگر آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ میزان کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ
इल्लल्लाह रख दिया जाए तो दूसरा पलड़ा इन सब से भारी हो जाएगा। अगर आसमान और ज़मीन जो कुछ उनमें है ये सब लोहे के तबक होते और बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता तो ये इन सब को फाड़ कर अल्लाह तक पहुंच जाता। इससे आप इसकी क़ुव्वत, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी पावर, इसकी फास्टनेस, इसकी क्विकनेस और इसकी रफ़्तार का अंदाज़ा कर सकते हैं। यानी हर जहत से बयान किया। पहले इसमें वज़न का बयान किया है, दूसरे में इसकी ताकत और इसकी रफ़्तार का बयान किया है। क्या जो है वो राकेट सफ़र करता होगा, क्या जो है वो खला में जाने वाले सैयारे जो है सफ़र करते होंगे। जो कलमा तैयबा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत अता की है कि लोहे को भी फाड़ कर जो है वो ये अल्लाह तक पहुँच जाएगा। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा, हमने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मगरिब की नमाज़ अदा की। जिसने बैठना था वो बैठ गया, जिसने जाना था वो चला गया। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, हालांकि आपके दोनों घुटनों का कपड़ा ज़रा ऊंचा था। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मुसलमानों की जमात खुश हो जाए, ये तुम्हारा रब है जिसने आसमान के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा खोल दिया है और फ़रिश्तों के सामने तुम पर फ़ख्र कर रहा है और फरमा रहा है, ये मेरे बंदे हैं जिन्होंने एक फ़रीज़ा मुकम्मल कर लिया और दूसरे के इंतज़ार में हैं। इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि जो लोग एक फ़रीज़ा मुकम्मल करने के बाद दूसरे फ़रीज़े के इंतज़ार में रहते हैं और इस दौरान ज़िक्र के साथ अपने आप को मुज़य्यन किए रहते हैं, उनकी शान अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान की है और क्या उनका दर्जा बयान किया है। इसीलिए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से हमें यह नसीहत दिलवाई गई और हमें यह बताया गया कि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम्हें मौत ना आए मगर हालत ईमान पर, हालत इस्लाम पर। इसीलिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये तो था हमारे प्रोग्राम फॉर्मेट का हिस्सा। आइए अब उन्वान की तरफ बढ़ते हैं और उन्वान के लिए मैं आपको जो अज़ीम शय अर्ज़ कर रहा हूँ वो है अपना सोहबत और सोहबत के साथ ज़िक्र, अपना नेक इरादा और नेक इरादे के साथ ज़िक्र। मेरे सामने अल-मिनहाजुस-सवी है जो कि शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मुद्दज़िलुल आली ने 1200 अहादीस पर मुश्तमिल ये किताब जो है बनाई है। इसमें अहादीस हैं, अहादीस सैया तकरीबन 80 के करीब किताबों से अहादीस इसमें इस्तिखराज की गई हैं। मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस, जिस हदीस का नंबर 341 है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। वो बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन उनका हाथ पकड़कर फरमाया, ए मुआज़ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हज़रत मुआज़ ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआज़ मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि हर नमाज के बाद यह दुआ मांगना हरगिज़ न छोड़ना। और वो दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्न इबादतिक। तो ये हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, ए अल्लाह मुझे अपने ज़िक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, मुझे अपने शुक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और मुझे इबादत को हसीन करके तेरी बारगाह में पेश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। फिर हज़रत मुआज़ ने सुनाबाही को इस दुआ की नसीहत की और इन्होंने अबू अब्दुर्रहमान को नसीहत की कि हर नमाज के बाद ये दुआ ज़रूर मांगे। ये हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हो की जो दुआ है, इसकी इस हदीस की तखरीज जो है वो की गई है अल-मिनहाजुस-सवी, जिसका मैंने हवाला आपकी खिदमत में पेश किया। इमाम नसाई ने फ़ी अमल यौम वल लैला में और इसी तरह से अबू दाऊद ने किताबुस्सलात बाबुल इस्तिग़फ़ार में इमाम अबू दाऊद इस हदीस को लाए हैं। और ये बड़ी अज़ीम हदीस जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की है, इसके हवाले आपकी खिदमत में आ गए। और इसी तरह से इमाम नसाई सुनन कुबरा में लाए और बाब बांधा उन्होंने मा यस्तहिब्बु मिनद दुआए दुबुर सलात इल मकतूबात के जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं उनके बाद जो दुआ आई है वो दुआ उन्होंने बयान की। अहमद बिन हम्बल अपनी मुस्नद में, इब्न हिब्बान अपनी सही में, हाकिम अपनी मुस्तदरक में, बज़्ज़ार अपनी मुस्नद में, बहकी सुनन सुग़रा में और तबरानी मौजमुल कबीर में और इसी तरह से तबरानी मौजमुल कबीर में भी इसको लाए हैं और नसाई इसको अपनी फ़ी अमल यौम वल लैला में और इब्न सुन्नी जो है फ़ी अमल यौम वल लैला में मुंज़री तरग़ीब और तरहीब में इस हदीस को उन्होंने कोट किया है। तो लिहाजा ये आइए अब इस हदीस की तरफ जो आज का हमारा मौजू है, ज़िक्र इलाही
शुक्र इलाही और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इबादत को हसीन करके पेश करना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद और उसकी नुसरत के बग़ैर नहीं हो सकता। और इसके लिए जो हज़रत मुआज़ बिन जबल, ये वो सहाबी हैं जिन्हें यंग एज में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की सोबत नसीब हुई। 18 साल की इनकी उम्र थी, मदीनातुल मुनव्वरा के रहने वाले थे, अंसार से इनका ताल्लुक़ था और बैत अक़बा में इन्होंने जो है इस्लाम कबूल किया और उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो संगत इन्हें हासिल हुई जो कि इन्हीं का नसीबा है कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर बैठने वाले भी थे, यानी रदीफ़ुन नबी होने का भी इन्हें एजाज़ हासिल था। सवारी पर बैठे और आका अलैहिस्सलाम ने इन्हें पुकारा, या मुआज़, तो इन्होंने कहा लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। 3 मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पुकारा और फिर इन्हें हदीस बयान की और पूछा इनसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बंदों पर क्या हक़ है और बंदों का अल्लाह पर क्या हक़ है। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का बंदों पर हक़ यह है कि वो उसकी इबादत करें, उसका कोई शरीक ना ठहराएं, और बंदों का अल्लाह पर हक़ यह है कि वो उन्हें माफ़ कर दे और उन्हें अज़ाब ना दे। तो लिहाजा ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सोबत याफ्ता सहाबी हैं जिन्हें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यमन का काजी बना के भेजा था और इनसे पूछा था, ए मुआज़, तुम किस तरह से फ़ैसले करोगे जब तुम वहाँ पहुँचोगे। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किताबुल्लाह से जो है फ़ैसला करूँगा। फरमाया, इल्लम तजिद फ़ी किताबिल्लाह, अगर तुम्हें अल्लाह की किताब में ना मिले तो फिर क्या करोगे। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं आपकी सुन्नत में तलाश करूँगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुन्नत में तो मसला होगा लेकिन तुम्हें ना मिले, तुम उस वक्त मौजूद ना हो, तो फिर तुम क्या करोगे। उन्होंने कहा, फिर अजतहिदु बिराई, मैं अपनी राय से फ़ैसला करूँगा, यानी कुरान और सुन्नत में गौर व ख़ौज़ करके उसी से मिलता जुलता उस उसूल की बिना पर जो है उसका हल निकालूँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम खुश हो गए और आका अलैहिस्सलाम ने इनके सीने पर हाथ मारा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या इलाहुल आलमीन, तेरा शुक्र है कि तूने अपने रसूल के कासिद को ये तौफ़ीक अता की कि जो लोगों के लिए सहूलत, आसानी और इल्म में रसूख हासिल करने वाला बन गया, लोगों के मसाइल को हल करने वाला बन गया। इस हदीस में आप गौर फरमाइए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल का हाथ थामा, यानी शफ़क़त दी, अपनी मोहब्बत दी, अपनी तरफ और उनसियत पैदा कर ली। वरना सहाबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सोबत में तो वैसे ही अलर्ट रहते थे, वैसे ही जो है वो चाक व चौबंद रहते थे, वैसे ही होशियार रहते थे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया था, ए ईमान वालो, ला तक़ूलू रायना व क़ूलू उन्ज़ुरना वस्माऊ वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में राहिना मत कहा करो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब बैठो तो राहिना का कलमा मत कहो, क्योंकि जिनके दिलों में बीमारी है वो लय्यम बेअलसिनतिहिम, वो अपनी ज़ुबान को ट्विस्ट करके इसका कोई और माना निकालना चाहते हैं, बल्कि ये कहा करो उन्ज़ुरना, या रसूलल्लाह हम पर नज़र करम फरमाइए। इसीलिए एक कौल आप सुनते हैं, या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना, ए अल्लाह के रसूल हम पर नज़र करम फरमाइए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह का प्रोटोकॉल सिखाया जा रहा है कि जब हुज़ूर के दरबार में बैठो, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठो, खा वो मजलिस हदीस हो, खा वो मजलिस ज़ाहिरी हो, दोनों तरह की मजलिस में बैठो तो फिर वहाँ अदब के पैकर बन जाओ और वहाँ तुम्हें जो है राय ना कहने की हाजत पेश ना आए, बल्कि उन्ज़ुर ना का कलमा कहो। और फिर वस्माऊ, और कलाम को जो है वो हमातन गोश होकर सुना करो। तो लिहाजा सहाबा हमातन गोश रहते थे, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में उनका हाथ थामा ताकि उन्हें मज़ीद शफ़क़त मिले। और फिर उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने एक जुमला फरमाया, इन्नी उहिब्बुक या मुआज़, ए मुआज़ मैं अल्लाह की खातिर तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल ने उसका जो रिस्पॉन्ड किया वो रिस्पॉन्ड आपने सुन लिया कि उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। बे अबी अंत व उम्मी व इन्नी व अना उहिब्बुक, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज़ मैं तुझे एडवाइस कर रहा हूँ कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये दुआ करना। वक्फ़े पर जा रहे हैं, वक्फ़े से वापस लौटेंगे तो इंशाअल्लाह इसी दुआ पर आपको गुफ्तगू करेंगे। ये दुआ पूरी इंसानी ज़िंदगी पर हावी है। अगर बंदा इस दुआ को अपना ले और इसमें गौर करे तो इसमें हर शय आ गई है। ईमान के बाद हर शय का निचोड़ इस दुआ में दे दिया गया है। अल्लाह ताला वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाह मिलते हैं। हमारे साथ रहिए।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक मोहतरम नाज़रीन और सामाईन, आप मुलाज़ा कर रहे हैं प्रोग्राम हुस्न अहवाल। वक्फ़े पे जाने से पहले मैंने आपकी खिदमत में एक अज़ीम दुआ जो हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई और उन्होंने फिर आगे अपने शागिर्दों को, अपनी औलाद को और पूरी उम्मत को बताई, और वो दुआ बार बार मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आप उसे याद भी कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्न इबादतिक। ये है वो दुआ जो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई कि इसे पढ़ा करो। क्यों कि जब तुम ये पढ़ोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगली नमाज की, ज़िक्र की, शुक्र की और नमाज को हसीन बनाने की तौफ़ीक़ वो अता करेगा। हमारा ये ईमान है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हकीकी मदद सिर्फ़ अल्लाह की है और इबादत सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए है। इबादत में कोई शरीक नहीं है, लेकिन मदद हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है और मजाज़न बंदे भी बंदों की मदद करते हैं, और इसीलिए वसीले का तसव्वुर भी रखा है, इस्तिआनत का तसव्वुर भी रखा है। तो लिहाजा ज़िक्र कोई कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद शामिल हाल ना हो। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपकी लाइव कॉल भी लेते हैं, सवाल भी लेते हैं। देखते हैं आज हमारे साथ पहला कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह साहब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इल्म, अमल और उम्र में बरकत अता करे। आमीन। और आपके कहने और हमारा सुनना कबूल हो। आमीन। हम सब के वालिदैन की बेसार मग़फ़िरत की दुआ फरमा दें। और अल्लाह साहब मेरे दो सवाल हैं। जैसे अभी आपने जो दुआ मतलब बताई, तो ये दुआ अल्हम्दुलिल्लाह मामूल है, लेकिन आपने वक्फ करके पढ़ा है। लेकिन मैं जो ऐसे पढ़ती हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। तो अगर वक़फ़ करके पढ़े तो तब क्या हुक्म होगा, जैसे वक़फ़ ना करे तो तब क्या हुक्म होगा? इसके बारे में इरशाद फरमाइएगा। और मेरा दूसरा सवाल ये है, जैसे आपने शुरू में इसाले सवाब का भी तज़किरा किया, तो अगर किसी शख्स का ये मामूल हो कि वो अपनी जो भी मकबूल नेकियां हैं तो वो तमाम मुसलमानों को इसाले सवाब करने का मामूल उसका रहा हो, तो इसके बारे में कोई हदीस पाक है कि उस आदमी को इससे क्या अजर मिलेगा? ठीक, अब जी शुक्रिया। दूसरे कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी जी, मेरा एक सवाल बहुत डिफरेंट है, अगर आप मुझे मदद कीजिएगा। जी जी जी, मेरे हस्बैंड ने है ना सारी बड़ी किताबें पढ़ ली हैं जी, मतलब कि आबे याते बाहो इस वगैरह की। जी, अपने ऊपर खुद ही अमल करने की बहुत कोशिश की है जी। वो बोलते हैं ना मुनाकिबा ये वो, तो थोड़ा माइंड मुझे उनका माइंड हट गया है अपने से। ठीक, बहुत परेशान है हम, बस उसके अंदर वो खोए खोए रहते हैं। मुझे मदद करें कि इससे क्या बिला उस्ताद के इन चीजों पे अमल कर सकते हैं या बिला कोई उसके, क्या बोलूं मैं आपको। जी ठीक है, मैं समझ गया आपका सवाल। इंशाल्लाह प्रोग्राम सुनते रहिए तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा। जी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था, हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हो की ये दुआ जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिखाई, लेकिन उससे पहले जो दुआ से पहले आका अलैहिस्सलाम ने अपनी तवज्जुहात अता फ़रमाई, उसको भी पेश नज़र रखना चाहिए। जब दुआ पढ़ें तो उस तसव्वुर को, उस मंज़र को सामने ला के रखना चाहिए कि आका अलैहिस्सलाम हज़रत मुआज़ बिन जबल का हाथ पकड़े हुए हैं। फिर उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं, ए मुआज़ वल्लाह मैं तुमसे जो है वो मोहब्बत करता हूँ। फिर हज़रत मुआज़ उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। ये मैंने तो सिर्फ जुमला अदा कर दिया, लेकिन जब आप किसी को प्यार और मोहब्बत से पुकारते हैं तो उसका तसव्वुर कीजिए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनको लेते हैं, फिर मैं इस तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। अच्छा मौलाना साहब, मेरा एक सवाल है। मैं ना हर रोज़ाना हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ के तस्बीह फातिमा पढ़ती हूँ। तस्बीह फातिमा पढ़ के ना उसमें ये हज़रत सल्लल्लाहु को ये नजराना पेश करती हूँ, और अहले बैत अतहार और बिलखुसूस बीबी फातिमा और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम और उनकी सारी ज़ुर्रियत
ता क़यामत आने वाली ज़रूरत, और दोनों शहजादे इमाम हुसैन इमाम हसन और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन और तमाम औलिया अंबिया सिद्दीक़ीन शुहदा और सालिहीन पर लाखों सलाम और करोड़ों दुरूद सलाम। मैं ये जो तरतीब रखती हूँ ये ठीक है, पहले सहाबा किराम का नाम लेती हूँ, फिर बाद में अंबिया औलिया। ऐसा करने से कहीं अंबिया की तो तौहीन यानी गुस्ताखी तो नहीं होती? जी जी, मैं अर्ज़ कर दूंगा इंशाअल्लाह। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मौलाना साहब, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। मैंने एक सवाल पूछना है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, हमेशा की तरह मैं हर प्रोग्राम देखती हूँ। सवाल कभी कभी मौका मिलता है करने का। बस मैंने तस्बीहात के बारे में पूछना है कि बहुत सी ऐसी तस्बीहात हैं जो हमें याद नहीं रहती। बस तीसरा कलमा या पहला कलमा या सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम, जो छोटी छोटी तस्बीहात हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, जो कुछ भी आता है ना वो मैं पढ़ती रहती हूँ नमाज के बाद भी और चलते फिरते भी। और जो आप दुआएं बताते हैं ना, मखसूस दुआएं मखसूस वक्त के लिए, जो कि अपने अंबिया कराम या अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, वो समझ याद नहीं रहती। क्या ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ठीक, बिल्कुल ठीक है, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आप मौजूद हैं तो आ जाइए। जी आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है, बिल्कुल, आप लाइव हैं, फरमाइए। जी मौलाना साहब, मैं ना पहला कलमा रोज़ाना 1000 दफ़ा पढ़ते हैं। मैं पढ़ते हुए कोई 10-20 साल हो गया है, तो रोज़ाना 1000 दफ़ा पढ़ते हैं। इसके अलावा कि अगर किसी शख्स से कभी कोई, हालांकि इतना कसूरवार भी हो, कोई गलती हो जाए तो जिसके साथ उससे ये लड़ाई हुई हो उससे वो मांगे, माफ़ी मांगे, लेकिन वो शख्स कहे जो कहे कि नहीं मैं तुम्हें कभी माफ़ करूँगी, हालांकि वो बहुत उसे माफ़ी मांगे और जो उसने गलती की है उसका वो अजाना चाहे, तो उसने भी गलती की, लेकिन उसने उसको माफ़ कर दिया, लेकिन वो कहते मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो क्या इसके बारे में क्या है कि वो ठीक, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। आपने माफ़ कर दिया, वो माफ़ नहीं करना चाहते, उनका मामला अल्लाह के पास छोड़ दें। आइए, मैं जिस दुआ और तस्बीह की तरफ आपको लिए चल रहा था उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ नमाज के बाद इस तरीके से ये दुआ सिखाई कि उन्हें जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शफ़क़तों से भर दिया, और ये हमारे लिए भी तालीम थी ताकि उम्मत जो है इसको जान सके, उम्मत इसे समझ सके और उम्मत जो है इसको गहराई में जाकर सोच सके कि पहले हाथ पकड़ा, कितना मोहब्बत का अंदाज़ है। आप देखिए, बच्चे का अगर आप हाथ पकड़ लें तो बच्चा अपने आप को सिक्योर फील करता है, और कायनात के जो रसूल हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपने सहाबी का हाथ पकड़ लें तो उस सहाबी की अज़मत और उसकी कैफ़ियत और उनकी जो दिली जो कैफ़ियत हैं उसका आलम क्या होगा। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी उहिब्बुक या मुआज़, ए मुआज़ मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। ये दूसरा दर्जा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत का जो है वो इजहार किया, वरना हर एक कोई सहाबा कराम आते, सफ़वान बिन कुद्दामा कहते हैं कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया और मैंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ बढ़ाइए, मैं बैत करना चाहता हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाया तो मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, इन्नी उहिब्बुक। बस ये सहाबा कराम बैत मोहब्बत भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हाथ पे करते थे। क्यों कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दरअसल अल्लाह की मोहब्बत है, और जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल हो गई उसे जो है वो अल्लाह की मोहब्बत मिल गई। और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया था, बुखारी और मुस्लिम के अंदर है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हाथ पकड़े हुए थे तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे जो है वो मोहब्बत करता हूँ हर शय से बढ़कर सिवाय अपनी जान के। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर तुम्हारा ईमान अभी नामुकम्मल है।
इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए। फिर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने आप को टटोल कर कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं अपनी जान से भी बढ़कर आपसे प्यार करता हूँ। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल आन या उमर, ए उमर, हाँ अब तुम्हारा ईमान जो है वो मुकम्मल हो गया, यानी अपने कमाल को पहुंच गया। ये तालीम देना थी उम्मत को कि मोहब्बतों में हर शय से बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो। और कुरान मजीद ने कहा, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि ईमान वाले वो हैं जो अल्लाह से टूट कर मोहब्बत करते हैं। तो क्या पता चला, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही अल्लाह की मोहब्बत है। और ये इमाम इब्न तैमिया ने अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल में ये फ़ैसला उन्होंने लिख दिया और उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल अहकाम में जो वो एक हैं, मोहब्बत में, दुश्मनी में, अमर में, नही में, अलगरज़ ये कि जितने भी अहकाम हैं इताअत में अल्लाह और उसका रसूल एक हैं। मैं एक दो मिसालें आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ ताकि इश्कालात जो है वो न रहें। सूरह निसा की आयत नंबर 80 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वमन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है या करेगा, यकीनन उसने अल्लाह की इताअत कर ली। और इसी तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बारगाह की इबादत करार दे दिया। सूरह हुजरात की पहली आयत को देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। शान नुज़ूल उठा के देखें तो कुछ सहाबा ने रोज़ा पहले रख दिया था, कुछ ने कुर्बानी पहले कर दी थी। मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। तो कुर्बानी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानवर से पहले हुई, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अमल से पहले हुई। रोज़ा तो आका अलैहिस्सलाम के अमल से पहले रखा गया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले अपनी ज़ात को रखा ताकि पता चल जाए अल्लाह और उसके रसूल हुक्म में एक हैं, इनमें दुई नहीं है। तो लिहाजा ये दो हवाले, इसके अलावा बहुत सारे हवाले मौजूद हैं जिनमें हम जा सकते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को अपनी मोहब्बत अता की। इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कई सहाबा को इस तरह से किया। एक अब्दुल्ला हिमार हुआ करते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, जिन पे बावजह कमज़ोरी इरादा कुछ जो है सज़ा जारी हुई। बाद सहाबा ने बैठ कर उनके बारे में जो है वो सख्त कलमात कह दिए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके बारे में ऐसा ना कहो, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। और फिर खैबर के मौके पर जब खैबर का कलाए खमूस फ़तह नहीं होता था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल अलम उस शख्स को दिया जाएगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। हज़रत उमर जैसे जय्यद साहबी कहते हैं, खुदा की कसम मेरे दिल में कभी भी लीडरी की ख्वाहिश पैदा नहीं हुई, लेकिन जब आका अलैहिस्सलाम ने यह कलमा फरमाया कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं, तो फिर मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, काश अल्लाह ताला मुझे उसके लिए चुन ले। ये तो वैसे ही चुनीदा लोग हैं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह उमर बिन ख़त्ताब या उमर बिन हशाम के ज़रिए से इस्लाम को तक़वियत अता फरमा, तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु दायरा इस्लाम में आए, जो मुराद रसूल कहलाते हैं। लेकिन जब खैबर का दिन तुलू हुआ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हस्ती का नाम लिया उनका नाम सैयदना अली करम अल्लाह वजहुल करीम है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, अयना अलीयुन, अली कहाँ हैं? तो वो बुलाए गए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ में अलम थमा दिया। तो लिहाजा इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शफ़क़त, अपनी मोहब्बत उन लोगों को दे रहे हैं। और जो लोग ये दुआ पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, तो उनके लिए भी उस असर का, उस फैज़ का जो असर ज़रूर उनके शामिल हाल होगा, जैसे मुआज़ बिन जबल के लिए हुआ। लेकिन एक चीज़ ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि सिर्फ ज़ुबान से ही कहना काफ़ी नहीं है, बल्कि ज़ुबान से कहना बरकत का सबब है। जैसे हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का एक कलमा अलिफ़ लाम मीम पढ़ें तो ये 30 नेकियां देता है। तो नेकियों पर नहीं रुकना, हमने नेकी वाले की तरफ जो है सफ़र करना है, इसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। तस्बीहात ज़रूर करनी चाहिए, इससे इंसान की ज़ुबान धुलती है, दिल पाक होता है, जहन और ख़यालात जो है वो हसीन हो जाते हैं, माहौल में ताज़गी और फ्रेशनेस आ जाती है। लेकिन ध्यान करना चाहिए कि उस तस्बीह का असर इंसानी ज़िंदगी पर भी आना चाहिए, उससे अखलाक भी संवरने चाहिए। जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स भी उस वक्त तक जो है वो मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसका जो है वो दिल जो है वो
इस्तकामत इख्तियार ना कर ले। और दिल की इस्तकामत का पता ज़ुबान से चलता है और ज़ुबान का पता उसके पड़ोस से चलता है कि उसका रवैया, उसका बिहेवियर अपने पड़ोसियों के साथ क्या है। अब आपने अंदाज़ा किया कि किस तरह से जो एक चीज़ दूसरे से लिंक है। जो कुछ हम बोल रहे हैं हमारी ज़ुबान के ज़रिए से हमारे दिल की कैफ़ियत जो है वो आशना हो रही है। दिल की कैफ़ियत का पता चल रहा है कि इस बंदे के दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि ज़ुबान तो एक आला है, ज़ुबान तो एक इंस्ट्रूमेंट है। ज़ुबान की तो अपनी कोई जो है वो अपना फंक्शन नहीं है। उसके पास तो जो कलमात हम भेज रहे हैं वो तो अदा कर रही है उसको, वो तो एक गोश्त का लोथड़ा है। असल में जहन से और दिल से जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं ज़ुबान उसकी अदायगी का सामान कर रही है। तो लिहाजा इसको हमेशा देखना चाहिए। जब तक इंसान की दिल की मजबूती का पता उस वक्त चलता है जब उसकी ज़ुबान में मजबूती आ जाती है, ज़ुबान में सकाहत आ जाती है, ज़ुबान दूसरों पर तानो तशनी नहीं करती, नेगेटिव बातें नहीं करती, बुराई की कलमात नहीं कहती। और फिर उसका पता कैसे चलेगा? उसका पता उस वक्त चलेगा जो उसके सराउंडिंग में और अराउंड रहने वाले लोग हैं, वो उसके घर वाले हैं, उसके पड़ोसी हैं, उनसे उसका बिहेवियर क्या है। तो आइए अब उस दुआ की तरफ और सवालात की तरफ भी आपके बढ़ते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ हज़रत मुआज़ बिन जबल को अपनी मोहब्बत देकर, और मुआज़ बिन जबल की कैफ़ियत उस वक्त क्या होगी, कितने वो वजद में होंगे जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें फ़रमाया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो उन्होंने कहा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। ये सहाबा कराम का तरीक़े अदब था। गो अरबों की ट्रेडिशन भी थी, लेकिन जब सुन्नत हो गई तो अब ये ट्रेडिशन से बढ़कर सुन्नत हो गई कि आका अलैहिस्सलाम की ये हदीस बन गई कि सहाबी कह रहे हैं भी अभी अंता व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम समा कर रहे हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का उस पर खामोश रहना ये भी हदीस, तो लिहाजा ये सुन्नत बन गई। तो अब जब भी हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक करें तो उसमें भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो रूखे से हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नाम ले लेते हैं और दुरूद पढ़ने में भी बुखल करते हैं, यानी पूरा दुरूद नहीं पढ़ते और बस एक जुमला कह देते हैं, वो मैं कहना नहीं चाहता, स्वाद लाम ऐन मीम कहकर जो है, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ बंदा जो है उसका चेहरा भी खिला होता है, उसका दिल भी बाग बाग होता है कि मेरी ज़ुबान पर अल्लाह के करम से मेरे महबूब का नाम आया, मेरे नबी का नाम आया, मेरे रसूल का नाम आया, रहमतुल लिल आलमीन का नाम आया। आप देखिए कोई नाम ले सकता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कोई नाम ले सकता है अल्लाह ताला का, अल्लाह का ज़िक्र कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। हज़रत साबित अल बुनानी ये शागिर्द हैं हज़रत अनस बिन मालिक के, और अनस बिन मालिक कौन हैं? ये वो शख्स हैं जिसने 10 साल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो है गुजारे हैं और ख़िदमत की हुज़ूर अलैहिस्सलाम की 10 साल तक उनके शागिर्द हैं। वो कहते हैं मुझे मालूम है कि मेरा रब मुझे कब याद करता है। लोगों ने कहा आपको कैसे पता है? उन्होंने कहा जब मैं उसे याद करता हूँ तो वो मुझे उससे पहले मुझे याद करता है। दलील फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करता हूँ। पहले अल्लाह अपने बंदे के दिल में उस तौफ़ीक डालता है, ख़्याल डालता है कि बंदे मुझे याद कर, तो बंदा कहता है अल्लाह अल्लाह अकबर, बंदा कहता है सुभान अल्लाह। यानी तौफ़ीक अल्लाह की बारगाह से आती है और अल्लाह की बारगाह से जो उसको इल्हाम होता है फिर वो ये कहता है। तो लिहाजा ये दुआ जो है सिर्फ दुआ तक ना रखिए बल्कि इसमें गहराई में जाइए। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिक, आइन्नी आइन है, ज़रा इसको अच्छे तरीके से अदा करना चाहिए। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिक, मेरी मदद फरमा, मेरी इआनत फरमा कि मैं तेरा ज़िक्र कर सकूं। अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए मदद भी उससे मांगी जा रही है। और फरमाया मेरी मदद फरमा कि मैं तेरा शुक्र बजा ला सकूं, तेरी नेमतों पर शाकिर रहूं। मेरी मदद फरमाया मेरे अल्लाह कि मैं इबादत को तेरी बारगाह में हसीन करके पेश कर सकूं। तो सारी चीज़ें आ गई, ज़िक्र, शुक्र, हम नेमतें इस्तेमाल करते हैं तो शुक्र अल्लाह का करें हसीन तरीके के साथ, और फिर जब बंदगी के लिए खड़े हों तो वो बंदगी भी हसीन तरीके के साथ अल्लाह की बारगाह में पेश की जाए। तो आइए अब पहली बहन ने बहुत सारी दुआएं हस्बे मामूल लाई, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे और उनके वालिदैन और जुमला नाजरीन के वालिदैन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाए। जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जिनके वालिदैन मौजूद हैं अल्लाह ताला उनकी नेक उम्र में बरकतें अता फरमाए। बहुत सारी दुआएं वो लाई। उन्होंने कहा कि इस दुआ को 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, वक्फ़े के साथ भी, हाँ समझ कर भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिक यूँ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कुरान नहीं है। कुरान में वक्फ़ वहीं होगा जहाँ वो
اوقاف دیے گئے ہیں، لیکن حدیث میں آپ رک کر بھی کر سکتے ہیں، اور پھر جہاں واو عاطفہ ہو وہاں آپ وقف بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا سانس ٹوٹ جائے، اور تعلیم اور تربیت کے لیے آپ اسے وقت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ تینوں بھی آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس طریقے سے بھی جو ایسے پڑھا جا سکتا ہے۔ دوسری سوال انہوں نے کیا کہ وہ جو اپنی نیکیاں ہیں وہ اہل ایمان کے لیے وقف کرتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں ریوارڈ کیا ملے گا؟ جس کے لیے آپ نے نیکی وقف کی ہے، اللہ رب العزت جتنا اجر انہیں دے گا اس سے بڑھ کر آپ کو عطا کرے گا۔ صرف ایک چیز میں اس پہ عرض کر دیتا ہوں، جو بندہ دوسروں کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے دیکھو اس بندے کو یہ کتنا جو ہے اِثار کرنے والا ہے، یہ دوسروں کے لیے دعا کر رہا ہے تو لہٰذا پہلے اس کو عطا کر دو، تو آپ کو سارا اجر جو ملے گا آپ کی نیت کے مطابق۔ اور اس کے بعد ایک بہن نے کہا کہ ان کے ہسبینڈ ہیں جو انہوں نے بہت سارے وظیفے خود ہی شروع کر لیے، اس کو ذہن نشین رکھ لیں، غالباً با یزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول ہے، جس کا کوئی استاد نہیں ہے شیطان اس کا استاد بن جاتا ہے۔ میری تمام سننے والوں سے دیکھنے والوں سے گزارش ہوگی کہ اپنے طور پر کوئی وظیفہ شروع نہ کریں سوائے ان وظائف کے جو قرآن اور سنہ میں موجود ہیں، اس کے علاوہ ان کو بھی پڑھتے ہوئے اسپیشلی آیت کریمہ کا وظیفہ اپنے طور پر شروع نہ کیجیے۔ بعض چیزوں کے آداب ہیں، آپ کلمہ طیبہ پڑھیے 100 مرتبہ، آپ درود پاک پڑھیے 100 مرتبہ، آپ استغفار پڑھیے 100 مرتبہ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ان کو جو ہے وہ کیجیے آداب کے ساتھ، تو انشاءاللہ برکت ہوگی۔ باقی کوئی وظیفہ پڑھنا ہو تو وہ کسی استاد سے، گائیڈ سے، مربی سے، کسی عالم سے پوچھ کر جو اس کو شروع کریں، تاکہ کسی طرح بھی آپ اس وادی میں جو ہے وہ بہک نہ جائیں۔ تو ہم آپ کے ہسبینڈ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا کرے اور ان کے جو معاملات ہیں انہیں خیر اور سلامتی کی طرف لائے۔ پھر ہماری ایک بہن نے پوچھا کہ وہ ترتیب میں آیت کریمہ، آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ نذرانہ جو پیش کرتی ہیں، تو اس میں وہ ترتیب میں پہلے جو ہے وہ اپنا صحابہ کرام کو اور اہل بیت کو ذکر کرتی ہیں، پھر انبیاء کرام کی بات کرتی ہیں۔ ادب یہی ہے جیسے قرآن مجید نے ہمیں سکھایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ترتیب ہے۔ اگر آپ نیچے سے شروع کرنا چاہیں اور اس میں بے ادبی اور اہانت کا ارادہ نہ ہو تو اس میں شرعاً کوئی بات نہیں ہے۔ ترتیب دونوں طرح سے ہے، آپ نیچے سے اوپر بھی جا سکتے ہیں، اپنے والدین سے شروع کر لیں، اہل ایمان سے شروع کر لیں، اپنے مشائخ سے شروع کر لیں، پھر تابعین، تبع تابعین، پھر جو ہے وہ انبیاء کرام، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی بات نہیں ہے، لیکن بہتر طریق وہی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بہن نے پوچھا کہ تسبیح یاد نہیں رہتی، جو یاد رہتا ہے پہلا کلمہ پڑھیے، تیسرا کلمہ پڑھیے، یہ بالکل درست ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی دعائیں یاد نہ ہوں تو ایک دعا بڑی آسان سی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ جو دعائیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ان دعاؤں کا اثر بھی ہمیں عطا فرما۔ اور پھر ایک دعا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ہر نماز کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جامع الدعا جو ہے وہ کرتے ہوئے سنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ تمام دعائیں اس کے اندر جمع ہو گئی، اے میرے رب مجھے دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ اس کے بعد ایک بہن نے کہا وہ 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتی ہیں، اور کوئی جو وہ خود معاف کر چکی ہیں لیکن وہ دوسرے لوگ انہیں معاف نہیں کرتے، تو کوئی بات نہیں، آپ معافی کا عمل جاری رکھیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے لیے استغفار کریں، اپنے لیے بھی استغفار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انشاءاللہ آسانی اور خیر فرمائے گا۔ آپ نے اپنا حصہ ادا کر لیا، اگر کسی کا دل سخت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی سختی کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ میں جمع کے صیغے کے ساتھ پڑھا کہ جب بہت سارے لوگ ہوں تو پھر یوں کہا جائے، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔